आज का लेक्चर स्टार्ट करता है. लास्ट टाइम वी आर फिनिश्ड विथ फर्स्ट 3 chapters ऑफ यूनिट 4. ठीक है. सो टोटल 4 chapters आर देयर इन यूनिट 4, तो उसमें से 3 आर वी आर ऑलरेडी डन. And today we'll be starting with chapter 4th of unit 4, that is software cost and estimation. So this is the last part. After this we have only left with unit 5. Okay, so I'll be starting with this now. In software cost estimation we have things like how and what is the exact cost estimation. We have software which might cost 6 months to develop that software. We require 10 developers. So ये वे में total software cost estimation क्या होगा. Let's say we have a software जो आपको develop करना है. So to develop that software, this is just a simple example. To develop that software, we total line of code. सबसे पहले तो बहुत बार हम लोग ये देखते हैं टोटल लाइन ऑफ कोड कितना आपको ऐड करना है. लाइन ऑफ कोड और किलो लाइन ऑफ कोड मतलब 1000 लाइन ऑफ कोड. 1 KB मीन्स 1024 होता है. 1024 बाइट्स मीन्स 1 किलो होता है. So exactly same way if I write KLOC means 1000 line of code. So if I write 10 KLOC मतलब 10,000 line of code. ठीक है. Now we have a developer जो per day 100 lines per day code करता है. This is my developer. Now ऐसे मेरे पास suppose we have 2 developers. So एक developer will be developing 100 lines, then second developer will be developing the similar way. तो let's suppose अभी हम लोग के पास एक ही developer है and we have only 1000 lines. थोड़ा छोटा कैलकुलेशन करता है. So we have only 1000 lines. आपका कोई एक प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ आपको 1000 लाइंस 1 KLOC 1000 लाइंस है. एक डेवलपर ही आपके पास है and he is developing 100 lines per day. ये उसका प्रोडक्टिविटी है. So 100 lines और ये यहाँ पे 1000 है. So कितना लगेगा. 10 days will be required by this developer to code 1000 lines. Simple calculation. Then अब ये तो आपका डेवलपमेंट का हो गया. यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं. टू code 1000 lines we require 10 days because one developer can write 100 lines per day. So अब 10 दिन लग रहा है बट यहाँ पे आपको अलग कैलकुलेशन भी करना है. क्या कैलकुलेशन. 10 days इसका मतलब हो गया almost 2 weeks because ये जो 10 दिन डेवलपमेंट चलेगा उसमें कोई वीकेंड्स भी आएगा, संडे भी आएगा और कोई छुट्टी भी आएगा. बराबर है. सो आई से कि अप्रोक्स 12 days आर रिक्वायर्ड. ठीक है. सो दिस आर द 12 days बिकॉज हम लोग यहाँ पे 2 हॉलीडेज कंसिडर कर रहे हैं. सो नॉर्मली हम लोगों ने मैथ्स कैलकुलेशन किया तो 10 दिन लगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हॉलीडेज कैलकुलेट किया. नाउ इट बिकमिंग 12 days प्लस बफर टाइम. Buffer time means while developing this software अगर कोई ऐसे डिफेक्ट आ गया which are not easy to solve, then what we'll be doing, we have to keep some buffer time to solve those errors. So suppose 3 days I keep as a buffer time. So total अभी buffer time plus normal time with holiday कितना हो गया 15 days. So this is the duration. 15 days are required to develop 1000 lines per day. अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मेरे एम्प्लॉइज है everyone is earning 1000 rupees per day. ठीक है. 1000 rupees per day. So अभी 15 days are required for coding. So मतलब यहाँ पे मेरा इसका कॉस्टिंग कितना हो गया 15,000 इसका कॉस्टिंग हो गया. Then
one person is there for requirement gathering, analysis and rest other things, feasibility study, ये सब के लिए. So suppose we required 4 days for this. So यहाँ पे तो simple 4 days का calculation होगा. 4 days मतलब 4000 हो गया. One designer. Now we required suppose 7 days for designing. Yeah, simply we can keep it 6 days. I'll write it 5 days. Let's suppose. So कोई वीकेंड या कुछ भी नहीं आएगा. 5 days are required for designing. So इसका simple कितना होगा? 5000 होगा. Then we required one tester. Now tester will be there for 4 days to test this. So इसका again 4000 हो गया. ठीक है. Then one person who will be deploying your software, वो 2 दिन वहां पे रहेगा for the successful installation of the software as well as providing a training. So deployment plus training आएगा. Providing training to our customers. 2 days वहां पे रह रहा है वो suppose, तो उसका 2000 हो गया. क्लियर है? So ये आपका भी टोटल कॉस्टिंग कितना हुआ अगर हम लोग कैलकुलेट करें, SDLC वे में कैलकुलेट करेंगे. रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस उसका 4000 है. सो 4000. देन डिजाइनिंग 5000 है, उसका 5000 हो गया. देन उसके बाद में क्या आएगा? कोडिंग आएगा, उसका 15000 हो गया. उसके बाद में आएगा टेस्टिंग जिसका 4000 है. आफ्टर दैट वी हैव डिप्लॉयमेंट, बराबर है, एंड ट्रेनिंग उसका 2000 है. ये सो टोटल अभी अगर हम लोग गिनेंगे कितना हो गया? ये 15 + 5 20 हो गया. 20 and 10 30,000 इज देयर. टोटल 30,000 ही हो गया. प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाकी के जो आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट्स यूज करोगे उसका सपोज इफ आई से अप्रॉक्स 5000 उसका हो गया. सो टोटल कितना आ गया? 35,000. प्लस अगर ये मेरा कंपनी है तो मेरा सैलरी भी निकलना चाहिए इसमें से. एम्प्लॉय की सैलरी तो निकल गया. सो लेट्स सपोज इफ आई से कि मेरा जो टोटल सैलरी है इसमें से वो होगा लेट्स सपोज 40,000 या 30,000. ठीक है, चलो 30,000 पकड़ते हैं. तो टोटल कितना हुआ? 65,000. सो 65,000 इज योर टोटल बजट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. एंड हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड? सो वो अभी डेज कैलकुलेट करता है. सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस के लिए 4 days प्लस डिजाइनिंग के लिए 5 प्लस कोडिंग के लिए 15, बराबर है, प्लस आपका जो टेस्टिंग है उसके लिए 4 days एंड डिप्लॉयमेंट के लिए 2 days. सो हाउ मेनी डेज आर टोटल रिक्वायर्ड? दैट इज 15 + 5 20 एंड ये 30 days आर रिक्वायर्ड. सो 30 days एंड आपका टोटल जो कॉस्टिंग हुआ वो कितना हुआ? 65,000. दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन. आई होप दिस इज वेरी सिंपल टू एवरीवन. और अब जैसे जैसे टाइप्स ऑफ योर सॉफ्टवेयर चेंजेस, उसके हिसाब से नंबर ऑफ लाइंस जो है, किलो लाइंस जो है वो चेंज होंगे. एंड सिमिलर वे एज एंड व्हेन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, सो विद दैट कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे और भी चेंजेस आएंगे. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट discussing this part. So software cost estimation, predicting the resource required for a software development process. So this is my prediction जो मैंने assume किया. So objective क्या है वो आपको हम लोगों को पता ही है. कोकोमो मॉडल ये हम लोगों को देखना है. टॉपिक्स क्या क्या कवर होंगे? फर्स्ट इज फंडामेंटल एस्टिमेशन क्वेश्चन. हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी? जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया 1000 लाइन कोड करना है. एक डेवलपर एक दिन में 100 लाइन कोड कर सकता है. 10 days are required, so that is the efforts. Calendar time needed. Calendar time मैंने overall क्या गिना? 30 days are required और 1 month is required. That is the calendar time. But उसमें से then we have segregated 4 days for requirement gathering, then 5 days for designing, 15 days for coding. वो आपका अलग शेड्यूल हो गया. That is the time table. So total cost क्या होगा वो हम लोगों ने बताया. प्रोजेक्ट एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग. प्रोजेक्ट एस्टिमेशन मतलब 65,000 इज माय प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड टाइम टेबल जो हम लोग बनाएंगे 4 days, 5 days, 15 days. अब ओवरऑल वी हैव डिफाइंड 15 days.
बराबर है. But in this 15 days which is required for, I say 15 days which are required for coding, ठीक है. Out of this 15 day, I'll just say on first day we'll be working on login sign up, ठीक है. That is two functions we are developing on day one. Then day two, who is this? Please put yourself on mute. Who is this? ओके. सो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि फॉर अ फंडामेंटल एस्टिमेशन क्वेश्चंस हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड. सो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वी हैव टोटल 15 days. From this 15 day, on day 1 we are developing 3 functions. Day 2 5 functions. Day 3 again 5 functions. Day 4 3 functions. अब कितने functions बड़े या छोटे हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने टाइम टेबल बनाया. And this way day 15 last 2 functions. So this is how we have divided our or developed we have provided or created our schedule or a timetable. I hope this is very clear to everyone. So बहुत सिंपल से क्वेश्चंस दिए आपको यहाँ पे. हाउ मच कैलेंडर टाइम इज नीडेड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एंड वही. सो सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट दोनों आएंगे यहाँ पे. दैट मीन्स जैसे हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल डिस्कस किया, वी हैव कंसिडर्ड सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड द टूल्स व्हिच वी आर यूजिंग फॉर अ डेवलपमेंट. उसका 5000 हम लोगों ने रेंट वहां पे ऐड किया था. So hardware, that is a laptop, computer, printer, whatever it is required, and software, testing software, development software, designing software, requirement gathering software, ये सब. Then traveling cost, training cost, अगर मैं बार बार उनके पास जा रहा हूँ रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए टू फॉर कंडक्टिंग द इंटरव्यू, तो उसका टोटल जो कॉस्ट होगा वो आएगा. एंड मेन कॉस्ट जो होगा वो क्या आएगा, एफर्ट्स कॉस्ट. दैट मीन्स सैलरी ऑफ डेवलपर, डिजाइनर्स, एवरीवन. एंड सोशल एंड इंश्योरेंस कॉस्ट जो रहेंगे हम लोगों के, बराबर है, ये सारे आएंगे. एफर्ट्स कॉस्ट मस्ट टेक ओवरहेड इनटू अकाउंट लाइक कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, हीटिंग, लाइटिंग, ये सब आएगा. नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन जो है, मतलब इफ आई एम यूजिंग इंटरनेट तो उसका भी कॉस्टिंग जा रहा है मेरा. इफ आई एम सेटिंग अप वन कंप्लीट सर्वर इन अ बिल्डिंग, सो उसका आपका कॉस्ट जा रहा है, बराबर है. आप जो ऑफिस यूज कर रहे हैं उसका रेंट है 1 मंथ का, तो 5000 तो मैंने बहुत कम पकड़ा था, बट ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब अगर हम लोग कोई प्रोजेक्ट के लिए अगर यूज कर रहे हैं, सो उसका सारा जाएगा. लाइट बिल से लेके, मतलब हम लोग जो बल्ब यूज करेंगे वो सब कैलकुलेट करना है आपको, क्योंकि वो सब निकाल के अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, देन ओनली वी से कि कोई प्रोजेक्ट हम लोग कर सकते हैं. देन कॉस्ट ऑफ शेयर्ड फैसिलिटी, लाइक वी हैव सम लाइब्रेरी जो हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर दिस प्रोजेक्ट. कोई स्टाफ रेस्टोरेंट है जिनको हम लोग कुछ लंच डिनर प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो माई कॉस्ट, बराबर है. कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, अब यहाँ पे क्या बोला, estimates are made to discover the cost to developer of producing a software. There is not a simple relation between the development cost and a price charged to the customer. ठीक है, सिंपल नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट के अलावा भी हम लोग के पास बहुत सारे दूसरे कॉस्टिंग रहते हैं. एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में भी कितना एफर्ट्स आपका लग रहा है. जैसे इफ आई से वी हैव अ डेवलपर हु कैन कोड 100 लाइंस पर डे, 100 लाइंस पर डे, लेकिन ये सिंपल अगर एप्लीकेशन रहेगा, तो कॉम्प्लेक्स अगर रहेगा सो इट माइट पॉसिबल 50 लाइंस होंगे पर डे. सो क्या हो गया, जो उसका एफर्ट्स थे, बराबर है, उसका जो कैपेबिलिटी था वो हाफ हो गया. सो आपका अगर पहले इफ 1000 लाइंस डेवलप करने के लिए एज पर 100 लाइंस वी रिक्वायर्ड 10 days,
बट इफ वी कंपेयर दिस वे, सो अभी डायरेक्ट 20 डेज हो गए, मतलब आपका जो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है इट गॉट डबल. So उसके लिए discovering the cost and producing the software, there is not a simple relation between development cost and the price. That is very much required, or we supposed to emphasize on this, because as and when complexity increases, productivity decrease होगा, productivity decrease होगा तो number of days बढ़ेंगे. ठीक है. Then same way समटाइम्स देयर माइट बी चांसेस कि जहां पे हम लोग कुछ डेवलप कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन देयर कल्चर, बेस्ड ऑन देयर एथनिसिटी, वी सपोज टू इम्प्लीमेंट समथिंग व्हिच इज कस्टमाइज्ड फॉर देम इटसेल्फ. तो अगेन उसको डेवलप करने के लिए हम लोग का टाइम जाएगा. जहां पे हम लोग वो सॉफ्टवेयर रिलीज करने वाले हैं वहां के उनके कोई पॉलिटिकल लीगल इश्यूज है, उसको टैकल करना है आपको, उसको ध्यान में रख के भी सपोज टू डेवलप इट. सो अगेन उसमें टाइम जाएगा, है ना. So this all thing we supposed to consider, like we supposed to implement something in China. Now China is the communist country, so they don't directly expose everything which is available over internet or a Google to their citizens. तो क्या होगा, everything should be filtered out before displaying to them. So if I'm developing a Google type search engine for other countries, वहां पे मेरा जितने efforts थे उससे ज्यादा efforts will be applicable in China, because more customization is required, more filtering is required. So if any news which is going on around the world about Chinese government which is negative in nature, or whether it is positive, everything will be filtered out from the government side. So we are not directly providing or putting up the links through which Chinese citizen can directly access something over internet. ठीक है, तो ये again होगा. Then software pricing factor, market opportunity क्या है, like a development organization may quote a low price, है ना. अब लो प्राइस क्या है कि आपके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो आपने क्या किया, वी हैव पोस्टेड अ लो प्राइस फॉर दैट. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अपॉर्चुनिटी, वहां डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोट अ लो प्राइस बिकॉज इट विशेस टू मूव इनटू अ न्यू सेगमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर मार्केट. लाइक अब तक मैं मोबाइल ऐप डेवलप नहीं कर रहा था, बट नाउ आई अबाउट टू स्टार्ट विद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इटसेल्फ. बट उसका एग्जैक्ट कॉस्टिंग मुझे पता नहीं था, या फिर देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स इन मार्केट. तो कोई मुझे प्रोजेक्ट कब देगा, व्हेन when I ask them to develop the software at lower cost. So वही है, accepting a low profit on one project may give the opportunity for more profit later. ये देखना है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस तो मिल रहा है. जैसे अभी तक मैंने मोबाइल ऐप बनाया नहीं है, अब किसी का मोबाइल ऐप का हम लोग के पास एक प्रोजेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़े कम कॉस्ट में मोबाइल ऐप बना दूंगा. फर्स्ट टाइम में कम प्रॉफिट कम होगा, लेकिन मैं आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, राइट. I'm developing something new. So once I learn that, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, for next project onwards I'll cost something higher compared to the first project. So cost estimation uncertainty, like if organization is unsure of its cost estimates, it may increase the price by some contingency over and above its normal profit. क्यों, क्या होगा कि आपने जो एस्टिमेट्स दिए थे वो आप प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पाए. जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किए उसमें भी सर्टेन थिंग्स वर मिसिंग. सो क्या होगा कि आप एक्चुअल कैलकुलेशंस नहीं कर पाए, एंड बिकॉज ऑफ विच एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट आपका जो टोटल कॉस्टिंग है वो या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है. कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स, कस्टमर may be willing to allow the developer to retain ownership of the source code. अब if I'm developing a software for someone, अगर मैं उसको सोर्स कोड भी पूरा दे दूं तो वो तो मतलब नहीं बनता है. तो आपको ये भी देखना है कि when we are signing a contract with the customer, do they want only a software or they also want a source code for that. So अभी source code देने का मतलब क्या है, he'll be maintaining software from his and then onwards. So that will again we supposed to maintain कि आप source code अगर उसको provide कर रहे हैं, then pricing charge may be less than the source code is, मतलब if you are handing over a source code, then charge may be more compared to a normal software delivering. Requirement volatility, of course this will be a major roadblock we can say, because if requirements are not clear,
we cannot easily provide the cost estimation. So वो time पे हम लोग क्या करेंगे, we provide a cost estimation from for individual iterations, like we'll be following iterative approach so that for any requirement changes we can easily tackle that situation. So what we say कि okay, for now we have this one requirement for now. So based on this one requirement, this is the total costing for whatever we'll be developing based on the current requirement. For next requirement जैसे आएंगे, based on that requirement will define what is the costing factor. Yeah, we can say we'll be following an iterative model. So 10 functions or suppose 50 function will be developing per iterations. So I'll say कि okay, per then financial health. Developer in financial difficulty may lower their price to gain a contract. Again, इंडिया में ये बहुत बड़ा एक कंपटीशन है टू गेट. अब स्टार्टअप्स है बहुत सारे. ना वो स्टार्टअप्स को सबसे पहले सरवाइव करना है. सो टू सरवाइव देमसेल्व्स वो क्या करेंगे, दे विल अप्रोच फॉर अ प्रोजेक्ट एट अ लोअर कॉस्ट. तो आप जब लोअर कॉस्ट पे अगर अप्रोच करते तो क्या होगा कि मार्केट में जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा. तो एक ये है, तो आप मार्केट में प्राइसेस तोड़ रहे हैं. अब आपने तोड़ा, उसकी वजह से कस्टमर्स जो है वो आपके पास आ रहे हैं, तो दूसरे को भी प्राइसेस थोड़े कम करने पड़ेंगे. नेक्स्ट थिंग, स्टार्टअप्स में हम लोग बड़ा प्रॉफिट डायरेक्टली अज्यूम नहीं कर सकते. मार्केट में वैल्यू बनेगा, नाम बनेगा, उसके बाद में यू विल गेट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट. सो जब तक आपका नाम या पोजीशन नहीं आ रहा है मार्केट में, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर्क ऑन स्मॉल प्रॉफिट्स ओनली. देन प्रोडक्टिविटी, जैसे अभी मैंने आपको बताया, मेजरमेंट ऑफ द रेट एट विच इंडिविजुअल इंजीनियर इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स. सो अब देखो, जो डेवलपर है ही सपोज टू डेवलप एज वेल एज वो जो डेवलपमेंट करेगा उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाते जाएगा. डॉक्यूमेंट मतलब अ रेफरेंस गाइड फॉर अदर डेवलपर्स, बिकॉज इन फ्यूचर अगर कोई अदर डेवलपर्स है जिनको अगर वापस वो सेम प्रोजेक्ट पे अगर वर्कआउट करना है, सो दे शुड हैव वन गाइड विद देम, जहाँ पे क्या डेवलपमेंट किया था, कैसे किया था, कोई अगर एरर या डिफेक्ट आया था, हाउ प्रीवियस डेवलपर सॉल्व्ड इट, ये सारा डिटेलिंग होगा. ठीक है. अब उसके आगे क्या बोला है, नॉट क्वालिटी ओरिएंटेड ऑल्दो क्वालिटी अश्योरेंस इज अ फैक्टर इन द प्रोडक्टिविटी असेसमेंट. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब हम लोग सिर्फ क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, बट वी आर फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड डेवलपमेंट अप्रोच विद द हेल्प ऑफ वन और द अदर फ्रेमवर्क व्हिच इज अवेलेबल इन मार्केट. सो framework in turns provides us a way of development जहाँ पे क्वालिटी अश्योरेंस कहीं ना कहीं अचीव हो जाता है. ठीक है. क्वालिटी अश्योरेंस मतलब वो डेवलपमेंट के टाइम पे आप विल बी फॉलोइंग अ फ्रेमवर्क जिससे आप कहीं ना कहीं एक लेवल तक क्वालिटी अचीव करने का ट्राई करेंगे. बट जहां कहीं पे इफ यू आर नॉट बी एबल टू अचीव अ बेटर क्वालिटी, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, विल बी फोकसिंग मोर और एम्फसाइजिंग मोर ऑन अ टेस्टिंग पार्ट. So we want to measure useful functionality produced per time unit. Per time unit means if I say कि okay, will be testing, uh, uh, will be will focus or emphasize on testing at every weekend. So वो वीक में जितना भी काम हुआ है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे एंड विल वेरीफाई कि okay कितना प्रॉपर एक्यूरेट काम हुआ है. Productivity measure, size related to measure based on some output from the software. This may be lines of delivered source code, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1000 line of code, object code instructions, or if I say कि okay we supposed to develop 50, 100, 200, 500 functions, तो वो way में भी हो सकता है. So function related measure based on the estimates of the functionality of delivered software. Function points are the best known. देखो यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं हम लोग, इन अ स्टैंडर्ड अप्रोच वी फॉलो this function point approach. Okay, we have a function point approach here. So we'll be calculating function points like we have suppose 100 function points. ठीक है. Now out of this 100 function point, I'll be categorizing them in multiple. I'll be segregating them in multiple categories. लेट्स सपोज फिलहाल के लिए वी हैव टोटल 5 कैटेगरीज. आप नेक्स्ट सेम्स एसपीएम में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट फॉर मेक दिस थिंग वेरी सिंपल, लेट्स से इफ आई से वी हैव 3 कैटेगरीज. ठीक है. वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ फंक्शन पॉइंट. वन विच इज द कॉम्प्लेक्स वन. ठीक है, वेरी कॉम्प्लेक्स. सेकेंड, मॉडरेट वन.
Moderate का मतलब क्या हो गया? Not too complex, not too simple as well. And third is the simple one. Okay, so we have divided this function. We have divided a function point based on this three categories. Now let's say I have created one table. ठीक है? Based on this categorization, that is complex, moderate, and simple. So total we have suppose 100 functions. So out of this 25 are complex, 50 are moderate and 25 is simple. This is the categorization. हम लोगों ने कौन से function है वो detail में यहाँ पे label करेंगे हम लोग. We'll be labeling all those 50 functions or 25 functions, whatever it is. And now I say key to develop one complex function we required 5 days time. To develop one moderate function we required 3 days time, and to develop one simple function we required just 1 day. ठीक है? So based on this, if I say कि यहाँ पे मेरे पास simple function 25 है, तो per function I required 1 day only. So यहाँ पे कितना लगेगा? 25 days will be required here. Moderate function per function we required 3 days because वो उतने simple भी नहीं है, उतने difficult भी नहीं है, but still we required 3 days time. So 5 into 3 कितना हो गया? We required 150 days. Then 25 में हम लोग क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे देखो क्या बोला है? 5 days are required. बराबर है? So based on this 5 days criteria, मेरे पास कितने फंक्शंस है? 25 फंक्शंस है. सो 25 5 कितना होगा? 25 5 विल बी 125 होगा. बराबर है? आई होप सॉरी 2500 हाँ 125 ही होगा. सो 125 डेज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस. सो टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 150 ये 125 एंड 25, सो टोटल कितने हो गए? 130 डेज हो गए. सो ये डिटेलिंग होता है कि जहां पे हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस के बेस के ऊपर नहीं, बेस्ड ऑन फंक्शन पॉइंट वी ट्राई टू एम्फसाइज और वी ट्राई टू कैलकुलेट द एफर्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. सो बेस्ट नोन आपको यहाँ पे वही बोला है, बेस्ट नोन ऑफ दिस टाइप फॉर मेजरिंग द सॉफ्टवेयर एक्चुअल cost estimation, not just cost estimation, total estimations. Now remember, whenever I say cost, okay, whenever I say cost is equal to time, calendar time, plus schedule, that is timetable. बराबर है? कैलेंडर टाइम का मतलब क्या है? यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कैलेंडर टाइम. कैलेंडर टाइम मतलब 2 months, 6 months, 8 months, वो टोटल टाइम है यहाँ पे बताएंगे. ठीक है? कैलेंडर टाइम मीन्स टाइम इन मंथ्स और डेज. शेड्यूल टाइम मतलब कौन से दिन पे विच पर्सन इज गोइंग टू वर्क ऑन विच, वो आएगा. एफर्ट्स. बराबर है? सो क्या हुआ? टाइम, कॉस्ट मतलब मनी तो आएगा ही ऑफ कोर्स. सो यहाँ पे हम लोग टाइम प्लस एफर्ट्स प्लस ह्यूमन रिसोर्स और रिसोर्सेस I can say. Now resources will include human resource plus सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्स, ये सब आएगा. सो ये सबको कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तब आपको कॉस्ट मिलता है. सो कॉस्ट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, कॉस्ट का मतलब होता है कैलेंडर टाइम दैट इज शेड्यूल. बराबर है? एफर्ट्स एंड रिसोर्सेस. एफर्ट्स मतलब 10 दिन 15 दिन कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वो एफर्ट्स कैलकुलेट करते हैं. एफर्ट्स कैलकुलेशन कौन से बेसिस पे होगा? जैसे अभी हम लोगों ने फंक्शन पॉइंट देखा तो कॉम्प्लेक्स, मॉडरेट एंड सिंपल 3 कैटेगराइजेशन किए थे हम लोगों ने, है ना? तो वो एफर्ट्स हम लोग बता रहे थे कि कौन से टाइप के फंक्शंस को क्या कितने एफर्ट्स लगेंगे. प्लस रिसोर्सेस. सो टाइम प्लस एफर्ट्स प्लस रिसोर्सेस, सिंपली वी कैन से इट्स इक्वल टू कॉस्ट. ये होगा आपका पॉइंट. सो यहाँ पे वो पॉइंट आ गया. आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज मेजरमेंट प्रॉब्लम. एस्टिमेशन साइज जो है वो आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं, या टोटल नंबर ऑफ प्रोग्रामर मंथ्स व्हिच हैव elapsed. सो अब देखो क्या होता है
कि कोई एक प्रोजेक्ट आपका डिले हो गया, ठीक है. वी अज्यूम दैट फ्रॉम अप्रैल starting from 1st April, I'll assign 5 developers on any XYZ project. Okay. Now अब ये मैंने यहाँ पे estimation डाला था, but out of this 5 developers, 2 developers are already busy with previous project जो delay हो गया है because of any XYZ reason. Previous project which is delayed. तो अब क्या हो गया, दे सपोज टू वर्क फॉर मोर 1 week हियर. तो इसकी वजह से क्या होगा, इंस्टेड ऑफ 5 डेवलपर्स 3 डेवलपर विल स्टार्ट विद दिस प्रोजेक्ट. तो जो भी हम लोगों ने एस्टिमेशन टाइम टेबल बनाया थे वो सारे चेंज हो गया ना अभी. सो वो है एस्टिमेटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्टिविटी. फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन टीम जो है उसको कितना टाइम लगेगा, ये सब आपको देखना है. तो अभी तक मैंने आपको जो भी कुछ बताया उसमें क्या था, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एस्टिमेशंस, जहां पे हम लोग सिर्फ क्या बात कर रहे हैं कि वी हैव development time only. We are not talking about time which is required for documentation preparation. So if 5 days are required, then 2 days are required for we can say for documentation as well. तो ये दोनों calculate करना होता है. Okay. So that is one thing. Okay. Now lines of code जो मैंने आपको already बता दिया है वही same है. Measurement was first postponed when programs were typed on cards with 1 line per card. Then क्या होगा, statements. Now remember lines of code जो है ना ये change होगा. If I write some code like आप ही देख लो कि if you write one hello world program in C++ or Java, number of lines will be more, and the same code if you write in Python, number of line of code will be very less. बराबर है. hello world if I want to print in Python, I only need 1 line. print command दो hello world लिखो, खत्म हो गया. I don't need to inherit or import any package or something, then start a bracket, then write some statement, then close a bracket. ये सब करने की जरूरत नहीं है. बराबर है. सो आप देखो कि लाइन ऑफ कोड्स जो है ना ये डिफर करेंगे. प्लस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम if I say I'm not going to calculate, अब number of lines में if I calculate HTML CSS वाला line as well, then वो तो प्रोजेक्ट जो है वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगा. तो याद रखो प्रोजेक्ट आपका ओवर एस्टिमेट भी नहीं होना चाहिए, अंडर एस्टिमेट भी नहीं होना चाहिए. मतलब आपके एफर्ट्स जो है इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आपने HTML CSS का लाइन ऑफ कोड जो है वो कंसिडर किया, बिकॉज वो तो बहुत सिंपल है. वो आप एक दिन में 2 दिन में बहुत सारे HTML CSS कोडिंग कर सकते हो. सो इफ वी कंसिडर दैट लाइन ऑफ कोड एज वेल विद द एक्चुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो वो तो आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया. मतलब एक्चुअल प्रोजेक्ट का जो कॉस्टिंग था उससे आपने बहुत ज्यादा कॉस्टिंग बता रहे हो. एंड अंडर एस्टिमेशन का मतलब है कि वी मिस्ड, लाइक जावा से हम लोग पाइथन में कोडिंग कर रहे थे, तो जावा में जहाँ पे सपोज 5000 लाइन ऑफ कोड हम लोग को लिखना पड़ रहा था कोई प्रोजेक्ट के लिए. नाउ वी रिक्वायर्ड ओनली इंस्टेड ऑफ 5000 वी रिक्वायर्ड टू राइट ओनली सपोज 3000 लाइन ऑफ कोड इन पाइथन. बट आपने ये नहीं समझा कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया पाइथन में कंपेयर टू जावा, बिकॉज आपको सपोर्ट सपोज कम अवेलेबल है. जितना सपोर्ट आपको पाइथन में जावा में अवेलेबल था उतना पाइथन में अवेलेबल नहीं है. सो ये सारे फैक्टर्स आपने कंसिडर ही नहीं किए, और आपके जो डेवलपर्स है दे आर मोर कंफर्टेबल विद जावा इंस्टेड ऑफ पाइथन, ये भी आपने कंसिडर नहीं किया. सो एवरीथिंग क्रिएट्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर आवरसेल्व्स. ठीक है. Productivity comparison same है. The lower level the language, the more productive the programmer. The same functionality takes more code to implement in a lower level language than in high level language. Low level मतलब जैसे अगर हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के टाइम पे जैसे इंस्ट्रक्शन लिखते थे, मल्टीप्लाई, ऐड, सबट्रैक्ट, ये सारे इंस्ट्रक्शन, तो उसमें आपको ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा. बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई यूज हाई लेवल लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन, ASP.NET, तो वहां पे कम लाइन आएंगे. बस वही है.
देन मोर वर्बेज द प्रोग्रामर द हायर द प्रोडक्टिविटी। मतलब इंटरनली आपको जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा चीजों का टेक्निकली, उतना आप ज्यादा क्विकली डेवलप कर पाएंगे। वर्बस का मतलब होता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कौन सा फंक्शन मैं कॉल करूंगा तो उसके लिए कौन सा पैकेज रिक्वायर्ड रहेगा, लाइब्रेरी में कौन से चीजें ऑलरेडी प्री डिफाइंड है जो मुझे कोड नहीं करना है, आई ओनली सपोज टू इनहेरिट दोस थिंग। ये अगर मुझे बहुत प्रॉपरली अगर पता है तो मेरा प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल हाई एंड लो लेवल लैंग्वेजेस जो है उसका एक यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। एक सेकेंड ना, वो डायग्राम यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, जस्ट 1 मिनट, सेकेंड। I'll just check for that diagram, मैं बाद में पोस्ट कर दूंगा। That diagram is not that difficult, सिंपल है। ये जो पीडीएफ है ना उसमें थोड़ा सा वो तकलीफ है। एक सेकेंड ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, we have just 1 minute, let me just find it। एक मिनट देना। ओके, I'll post that diagram in chat। हम लोग यहाँ से ही वेरीफाई करेंगे, यहाँ से ही पढ़ लेंगे। सो मेक श्योर कि आप वो सेम जो डायग्राम है वो यहाँ से रेफर कर लो। देखो मैंने वो शेयर किया है, यहाँ पे मिसिंग था वो। कोई कोई डायग्राम्स कहीं कहीं पे कॉपीराइट वायलेशन अगर होता है तो बिकॉज ऑफ विच डायग्राम्स आर हिडन। सो ये डायग्राम जो है इट इज प्रोवाइडेड इन चैट बॉक्स। इफ यू नोटिस, इफ आई ओपन दिस डायग्राम, so if I open this diagram, यहाँ पे देखो वी हैव हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इन लो लेवल लैंग्वेज आपको करना है, वैलिडेशन करना है। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हो रहा है, एनालिसिस, डिजाइनिंग, ये सब का टाइम जो है ना वो कट शॉर्ट हो रहा है। देखो एनालिसिस का टाइम कम हो गया, डिजाइनिंग टाइम कम हो गया, कोडिंग टाइम कम हो गया, और ये तीनों अगर फैक्टर्स अगर कहीं ना कहीं कट शॉर्ट हो जाएंगे तो आपका वैलिडेशन, टेस्टिंग टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, टेस्टिंग टाइम विल ऑल्सो बी लेस। So that is what we are discussing here. So I hope this is clear to everyone. Okay, so now we'll go back to our topic. Okay, so यहाँ पे आपको जैसे बताया that after this diagram जो अभी मैंने पोस्ट कर दिया है, आप देख लेना वहां से। सो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, सिस्टम डेवलपमेंट टाइम्स क्या आपको दिया है, लाइक असेंबली कोड अगर मैं ऐड करूंगा सो वहाँ पे एनालिसिस टाइम इज 3 वीक्स। देखो ये सेम डायग्राम जो अभी मैंने आपको बताया वो सेम डायग्राम है, दिस इज द सेम डायग्राम। हम लोगों ने डेज वाइज इसका कैलकुलेशन बताया हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, असेंबली कोड 3 वीक्स आर रिक्वायर्ड, डिजाइनिंग 5 वीक्स, कोडिंग 8, टेस्टिंग 10 वीक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे सो आपको यहाँ पे 3 वीक्स एनालिसिस, डिजाइन के लिए सेम है, कोडिंग, टेस्टिंग का काम कम हो, टाइम कम हो गया, और डॉक्यूमेंटेशन टाइम कम हो गया। प्रोडक्टिविटी, असेंबली कोड में आपका साइज जो है वो 5000 लाइन ऑफ कोड है, एफर्ट जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 28 वीक्स लग रहा है। प्रोडक्टिविटी कितना चाहिए आपको, 714 लाइन्स पर मंथ रिक्वायर्ड है। दिस इज द प्रोडक्टिविटी विच इज रिक्वायर्ड कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज।
सेम सॉफ्टवेयर आप लिख सकते हैं इन हाई लेवल लैंग्वेज, वो बता रहे हैं हम लोग। और उसमें इफ यू नोटिस आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो कितना हो गया, 5000 से 1500 हो गया डायरेक्टली, बिकॉज बहुत सारे पैकेजेस लाइब्रेरीज हम लोग यूज कर रहे हैं। एफर्ट्स आपका 8 वीक्स मतलब 2 मंथ से कम हो गया, और प्रोडक्टिविटी भी लिमिटेड है अभी, मतलब 300 लाइंस पर मंथ आपको लिखना है। मतलब आप देखो प्रोडक्टिविटी जो आपको रिक्वायर्ड है वो हाफ से भी कम हो गया, एफर्ट्स भी आपके बहुत कम हो गए, लाइन ऑफ कोड भी आपका कम हो गया। सो दिस इज द बेनिफिट जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है। फंक्शन पॉइंट जो मैंने आपको बताया, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट क्या है, यूजर इंटरेक्शन क्या है, एक्सटर्नल इंटरफेसेस कितने रहेंगे, एंड कौन से टाइप के फाइल्स आप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई से वी आर एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम मोबाइल एज वेल एज फ्रॉम अ कंप्यूटर, तो दोनों रिक्वायर्ड होंगे, है ना। प्लस अननोन नॉन रजिस्टर्ड यूजर जो है वो आके कोई क्वेरी फायर कर सकता है, सो अगेन उसके लिए हम लोग वी सपोज टू राइट सम और द अदर कोड। देन सेम वे वी हैव टू राइट यूजर इंटरेक्शन के लिए कुछ अलग से लाइन या फंक्शंस। Same way, let's suppose if I say कि I'll be sharing a Word document, PPT, PowerPoint, images, videos, और वो भी अलग अलग एक्सटेंशन वाले वीडियोस वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ। तो आप देखो कि मल्टीपल थिंग्स आर पॉसिबल हियर, कि आपको क्या क्या चीजें, लाइक आपने देखा रहेगा कि व्हाट्सएप पे पहले पावर पॉइंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, ये सब इजीली शेयर करने का ऑप्शन नहीं था। दे हैव स्लोली दे हैव इंटीग्रेटेड एवरीथिंग ऑन इट। नाउ व्हाट्सएप जब मैं मोबाइल पे यूज कर रहा था तब तक ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप वेब, दैट इज व्हेन आई एम ओपनिंग माय सेम व्हाट्सएप ऑन माय कंप्यूटर, तो वो टाइम पे वहां पे वॉइस कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी नहीं था, विच इज नाउ अवेलेबल। So if I call you on WhatsApp over voice call और video call, और आप अगर अपने वेब पे भी अगर कनेक्टेड है, then you will get the same notification there as well. Getting? So ये सारे जो है ये आपके benefits है। Weight is associated with each of this. Function point is computed by multiplying each row count by the weight and summing all वैल्यूज, कि कितना हम लोग को फंक्शन है उसमें कितने एफर्ट्स आपके लगेंगे, कितने चीजें आपको ऐड करना है उसमें, बराबर है। कौन से टाइप के फाइल्स या डेटा के साथ विल बी इंटरैक्टिंग, तो जो टाइप के डेटा या फाइल के साथ हम लोग इंटरैक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपके एफर्ट्स जो है वो वहां पे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एंड एट द एंड वी कैन फाइंड आउट और वी कैन प्रोवाइड अ डिटेल ऑफ टोटल एस्टिमेशंस। सो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एस्टिमेशन दिया हुआ है। फंक्शन पॉइंट, यहाँ पे आपको क्या बोला है, लाइन ऑफ कोड सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है। सो एवरेज हम लोगों के कितने एफर्ट्स रहेंगे, लाइक एज पर द लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फंक्शन पॉइंट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट लाइन ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन द एवरेज number of line of code per function point for a given language. Like language might be Java or ASP.NET, बराबर है, और PHP और Python, which one we are going to use as per that. So average आपका जो function point count है वो क्या होगा। So जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एवरेज हम लोगों का जो function point count है is a language dependent factor, बराबर है। लाइक लाइन ऑफ कोड कितना आएगा, एवरेज हम लोगों का जो लाइन ऑफ कोड है या एवरेज हम लोगों के जो एस्टिमेट्स है मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट्स, कितने फंक्शन पॉइंट्स आपके हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके हम लोगों का एवरेज जो है वो सपोज आई से कि 100 लाइंस है, तो अभी वो जावा में भी 100 लाइंस है, एएसपी में भी 100 लाइन है, कि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो रहा है वो देखेंगे हम लोग। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एवरेज जो है हम लोगों का एवीसी जो है, एवरेज इज अ लैंग्वेज डिपेंडेंट फैक्टर वेरिंग फ्रॉम 200 to 300 फॉर असेंबली लैंग्वेज टू 240 फॉर जो हम लोग के 4G लैंग्वेज है, 4th जनरेशन लैंग्वेज है, दैट इज जो आज के जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो जहाँ पे मैं असेंबली लैंग्वेज में जहाँ पे मुझे 100 लाइन या 200 लाइन का कोड लिखना पड़ता था, वही सेम काम मेरा 20 लाइंस में हो जाता है इन हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज, या उससे भी कम लाइन में हो जाता है। सो फंक्शन पॉइंट्स आर वेरी सब्जेक्टिव, दे डिपेंड ऑन एस्टिमेटर्स। ऑटोमेटिक फंक्शन पॉइंट काउंटिंग इज इम्पॉसिबल हियर।
सो आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक कहीं नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। सो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स में हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? यस, So you have to take cut. या ओके। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्ट पॉइंट्स। ऑब्जेक्ट पॉइंट्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट पॉइंट्स आर एन ऑल्टरनेटिव फंक्शन रिलेटेड मेजर टू फंक्शन पॉइंट्स व्हेन हम लोग का फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो टाइम पे आपके डेवलपमेंट एफर्ट्स क्या होंगे? लाइक आप देखो, फोर्थ जनरेशन का मतलब क्या है कि हम लोग आज के जो बेस्ट टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेजेस है वो यूज कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा? देयर आर मल्टीपल एपीआईज विच आर अवेलेबल। तो वो एपीआई तो रेडी, मतलब रेडी फंक्शनलिटी विच इज ऑलरेडी देयर, वो यूज करेंगे और खुद से हम लोग थोड़े कुछ एफर्ट्स डालेंगे तो आपका जो फंक्शनलिटी है वो बहुत क्विक हो जाता है। ऑब्जेक्ट पॉइंट्स आर नॉट द सेम एज ऑब्जेक्ट क्लासेस, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑब्जेक्ट पॉइंट्स का मतलब है कि कितना टोटल डेवलपमेंट होगा हम लोग का। जहाँ पे इफ आई से कि वी रिक्वायर्ड वन क्लास वन ऑब्जेक्ट फॉर अ कैलकुलेशन, जहाँ से मैं जो ऑब्जेक्ट को यूज करके मैं ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई ये कॉल कर सकूँ, तो वो टाइम पे कौन कितने ऑब्जेक्ट्स हम लोग वहाँ पे क्रिएट करेंगे फॉर डिफरेंट फंक्शनलिटी। अब वो हर एक के लिए मुझे उतने क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं है। देयर माइट बी फ्यू ऑब्जेक्ट्स विच आर रेडीली अवेलेबल फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो वो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स कितने हैं वो आपको देखना है। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे? जैसे फंक्शन पॉइंट्स की हम लोगों ने बात किया, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल फंक्शन पॉइंट्स, यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ओके टोटल दिस मेनी ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड, जिसके बेस के ऊपर आई विल बी इनहेरिटिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो कितने ऑब्जेक्ट पॉइंट्स है उसके बेस के ऊपर भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग जो यूज करते हैं वो फंक्शन पॉइंट ज्यादा हम लोग को फेवरेबल लगता है। ठीक है, ज्यादा सिंपल भी लगता है, एटलीस्ट फॉर फ्रेशर्स जिनको ज्यादा आइडिया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर टू फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन। सो नंबर ऑफ स्क्रीन सेपरेट स्क्रीन्स दैट आर डिस्प्लेड, बराबर है, वो देखेंगे हम लोग। लाइक एक ही सेम डेटा मैं आपको मोबाइल पे भी बता रहा हूँ, लैपटॉप पे भी बता रहा हूँ, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो होने के बाद में इफ वी आर ट्राइंग टू मेक अ पेमेंट, तो पेमेंट होने के बाद में अगेन मैं आपको और भी दूसरे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन अपडेट्स दे रहा हूँ, वो सब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज हर एक जो सक्सेस या फेलियर का अगर स्क्रीन या मैसेज बताना है तो उसके लिए कुछ कोडिंग तो आपको लिखना ही पड़ेगा। देन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम, ये देखेंगे हम लोग। नंबर ऑफ 3G मॉड्यूल्स दैट मस्ट बी डेवलप्ड टू सप्लीमेंट द 4G लेवल कोड, मतलब पुराना आपके पास कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और उसको हम लोग 4G लेवल पे लेके जा रहे हैं, मतलब फोर्थ जनरेशन जो आपका लैंग्वेज है उसके ऊपर लेके जा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल अपडेशन। सो मेरा पहले का कोई कोड जो है वो सिंपल विजुअल बेसिक्स में बना था, वीबी में बना था, लेकिन अभी हम लोग के पास क्या है? VB.NET है, जिसपे आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, डेटाबेस से भी बहुत स्मूथ कनेक्टिविटी हो जाएगा और उसको आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वो टाइम पे आपको अगेन एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करना है, कहीं पे चेंजेस करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है अपने पुराने कोड को, तो ये सारे फंक्शंस, ये सारे फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट एस्टिमेशन क्या बोल रहा है? आर इजियर टू एस्टिमेट फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन देन फंक्शन पॉइंट एज दे आर सिंपल कंसर्न विद द स्क्रीन रिपोर्ट्स एंड द, मतलब कितने स्क्रीन है। जैसे मैंने GUI बना दिया, लेट्स सपोज मैंने पहला एक GUI बनाया साइन अप के लिए, तो एक ऑब्जेक्ट पॉइंट क्या हो गया? साइन अप बनाना है, साइन अप के लिए। सेकेंड हो गया सपोज लॉगिन हो गया, देन थर्ड इज यूजर प्रोफाइल हो गया। तो मैं नंबर ऑफ स्क्रीन्स कैलकुलेट करके भी मैं बता सकता हूँ कि ओके कितने ऑब्जेक्ट पॉइंट्स लगेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट पॉइंट से मैं कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो फंक्शन पॉइंट्स पे जब अगर मैं बात करूंगा तो मैं बहुत इजीली कैलकुलेशंस कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास इतने फंक्शंस है, इतने डिफरेंट फंक्शंस अगर है मेरे पास, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया बेस्ड ऑन complex, moderate and simple way, है ना? So they can therefore be estimated at an early point in the development process.
तो फंक्शंस जो है वो कभी कभी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उसका कॉम्प्लेक्सिटी जज नहीं कर पाएंगे, वो जब हम लोग डेवलप करेंगे तभी आपको उसका कॉम्प्लेक्सिटी जज करने आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट पॉइंट्स है वो तो मेरे पास GUI अवेलेबल रहेगा ना, कितने स्क्रीन लगेंगे, तो उसके बेस के ऊपर मैं बहुत सिंपल वे में ऑब्जेक्ट पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो आप देखो कि दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, दोनों के अपने कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। So as you can see यहाँ पे क्या बोला है, at this stage it is very difficult to estimate the number of lines of code in the system। मतलब फंक्शन पॉइंट से हम लोग ये तो बता सकते हैं कि कितना बड़ा या छोटा बनेगा आपका सॉफ्टवेयर, लेकिन एग्जैक्ट जजमेंट की लाइन ऑफ कोड कितने लगेंगे वो हम लोग को नहीं पता है। तो वो कैलकुलेशन जो है वो हम लोग फंक्शन पॉइंट सेग्रीगेशन से ही कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी एस्टिमेट रियल टाइम, अगर एम्बेडेड सिस्टम है तो आपका प्रोडक्टिविटी कितना हो सकता है। लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 40 to 160 लाइंस पर मंथ होंगे, बराबर है, पर डेवलपर पर मंथ। या सिस्टम प्रोग्रामर अगर है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, ड्राइवर्स या ऐसा कुछ, तो वो टाइम पे आपका प्रोडक्टिविटी 150 to 400 होगा। कमर्शियल एप्लीकेशंस अगर बना रहे हैं हम लोग, मोबाइल ऐप, वेबसाइट के पे एप्लीकेशंस, तो वो टाइम पे आपका प्रोडक्टिविटी क्या है। सो आपको देखना है कि आपका सॉफ्टवेयर रियल टाइम एम्बेडेड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, तो उसके बेस के ऊपर आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कितना है। So based on this productivity, we supposed to calculate the estimates of our product। ठीक है। सो अब मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये हम लोग का स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी होना चाहिए 200 to 800 लाइंस पर मंथ, तो अब प्रोडक्टिविटी अगर आपका लो जाएगा देन इट विल अगेन एक्सटेंड आवर प्रोजेक्ट, और उसके साथ में अगेन वापस आपका जो भी एस्टिमेशंस है, आपका जो प्रॉफिट है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। So in object points, productivity has been measured between 4 and 50 object points per month, depending on the tools and support and development capacity। Factor affecting the productivity, क्या क्या factors है, like application domain experience। The knowledge of application domain is essential for the experience फॉर एफिशिएंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लेकिन इंजीनियर्स जो है उनको एक तो सबसे पहले ये एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये फैक्टर हो सकता है, और एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा ही है। तो ये फैक्टर जो है वो पॉजिटिवली एंड निगेटिवली दोनों वे में अफेक्ट करता है। अगर आपको अगर पास्ट जो प्रोजेक्ट है या सॉफ्टवेयर है या सिमिलर डोमेन के सॉफ्टवेयर बनाने का एक्सपीरियंस है तो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, अगर नहीं है तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। प्रोसेस क्वालिटी, क्वालिटी कैसे पता चलेगा, विद टेस्टिंग ओनली। द डेवलपमेंट प्रोसेस यूज्ड कैन हैव सिग्निफिकेंट एफर्ट इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। सो याद रखो हम लोगों ने देखा था ISO स्टैंडर्ड या ISO सर्टिफिकेशन अगर आपको रिक्वायर्ड होगा अपने सॉफ्टवेयर पे, देन वी सपोज टू फॉलो द टेम्पलेट व्हिच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द ISO साइट, और वो टेम्पलेट फॉलो करके इफ वी आर डूइंग द डेवलपमेंट, डिजाइनिंग एंड अदर थिंग्स, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगा। प्रोजेक्ट साइज, larger project, more time required for a team communication, less time is available for development, so individual productivity is reduced। बड़े प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इसी में आपका इतना ज्यादा टाइम चले जाता है कि एक्चुअल जो डेवलपमेंट है उसमें आपका एफर्ट ज्यादा नहीं लगता है। देन टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मतलब हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल यूज कर रहे हैं, केस डायग्राम्स बनाने के लिए हम लोग कोई केस टूल्स यूज कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग ऐसा कोई रेडी फ्रेमवर्क जो अवेलेबल रहेगा वो यूज करें। वर्किंग एनवायरनमेंट, अ क्वाइट वर्किंग एनवायरनमेंट विद द प्राइवेट वर्क एरिया कंट्रीब्यूट्स टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। वर्किंग एनवायरनमेंट, अब ये बहुत जरूरी है, आप जो टीम में काम कर रहे हो उसमें कितना सपोर्ट है आपको, आपके कलीग्स आपको कितना हेल्प कर रहे हैं, तो अगर आपको हेल्प करेंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा तो प्रोडक्टिविटी अगेन इंक्रीज होगा। सो क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, एज यू कैन सी ऑल मेट्रिक्स बेस्ड ऑन वॉल्यूम और यूनिट्स, volume per unit time are flowed because they do not take the quality into account। अब मैं आपको अभी तक जो भी हम लोगों ने बोला उसमें क्या बोला कि विल बी डेवलपिंग 100 लाइंस 200 लाइंस पर डे, लेकिन हम लोगों ने वहां पे क्वालिटी के ऊपर फोकस ही नहीं किया है। तो ये जो भी एल्गोरिदम्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये जो भी टेक्निक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी के ऊपर एम्फोसिस जो है वो काफी लिमिटेड है। तो प्रोडक्टिविटी may generally be increased at the cost of quality। It is not clear how productivity or per quality metrics are related। If change is constant, then an approach based on counting lines of code is not meaningful। क्योंकि आपको ये देखना है कि लाइन ऑफ कोड जो है उससे नहीं, लेकिन एग्जैक्ट आपको डेवलप क्या करना है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है वो समझना है।
सो एस्टिमेशन टेक्निक वापस वही आ रहा है, देयर इज नो सिंपल वे टू मेक एन एक्यूरेट एस्टिमेशन। तो कभी कभी अगर मुझे नहीं पता है तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस डेवलपर। सो इनिशियल एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन inadequate information in a user requirement definition. The software may run on unfamiliar computers or use new technology. The people in the project may be unknown. सो प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन मतलब क्या है, लोग जो आपस में काम करे एक टीम में, वो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कितने लोग हैं। जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम हो गया, देन सॉफ्टवेयर जो आपका रन हो रहा है वो एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रहा है, जैसे लिनक्स पे, और आपने डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर इज बेस्ट परफॉर्मिंग ऑन विंडोज। सो अगेन दैट इज द न्यू प्रॉब्लम। या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए आपके बनाने के बाद में, या वंस वी स्टार्ट यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर, नाउ टेक्नोलॉजी हैज चेंज। सो टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गया तो उसके हिसाब से अगेन हम लोग कहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे, अप्लाई करेंगे, या फिर वो एस्टिमेशन तो हम लोगों ने ध्यान में ही नहीं रखा था। तो इसके लिए कंपनीज जो है ना वो अपने कैपिटल में से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए हमेशा फंड्स रखते हैं। देन प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन may be self-fulfilling. The estimate define the budget and the product is adjusted to meet the budget. एस्टिमेशन टेक्निक कौन से एल्गोरिथमिक है, एक्सपर्ट ओपिनियन है, या जजमेंट है, एस्टिमेशन बाय एनालॉजी, पार्किंसंस लॉ है, एंड प्राइस टू विन है। सो देखो एल्गोरिथम, कोड मॉडलिंग क्या बोला है, अ फॉर्मूलिक अप्रोच बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट इंफॉर्मेशन एंड व्हिच इज जनरली बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट ये होगा कि जहां पे हम लोग क्या करेंगे, एल्गोरिथमिक कोड मॉडल वेयर वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की लास्ट टाइम सिमिलर प्रोजेक्ट अगर बनाया था तो वो टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर का साइज कितना बड़ा हुआ था, कितना टाइम लगा था, कितने डेवलपर्स रिक्वायर्ड थे, कौन से टाइप के डेवलपर्स रिक्वायर्ड थे, ये सब आएगा। एक्सपर्ट जजमेंट नाम पे से पता चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कोई एक एक्सपर्ट को लेके आऊंगा, या दो एक्सपर्ट को हो सकता है, या ज्यादा भी हो सकता है, जो अपने सजेशंस देंगे। हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग किया हुआ है उसके ऊपर, बिफोर वी स्टार्ट विद आर प्रोजेक्ट। तो आप एक एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट जजमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग हियर। सो एक्सपर्ट जजमेंट में क्या बोला है, वन और एक्सपर्ट जो भी आपके कलीग्स रहेंगे वो। एडवांटेजेस क्या है, अब रिलेटिवली चीप एस्टिमेशन मेथड्स कैन बी एक्यूरेट इफ एक्सपर्ट्स हैव डायरेक्ट experience of similar system. Disadvantage क्या है, very inaccurate if they are no expert. Estimation by analogy, the cost of project is computed by comparing the project to a similar project in the same application domain. Like accurate if the project data available, ये एक simple measurement हो गया। and disadvantage क्या हो गया, impossible if no comparable project has been tackled. ओके, पार्किंसंस लॉ क्या बोल रहा है, द प्रोजेक्ट कॉस्ट व्हाटएवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल। तो आपको यहाँ पे देखना है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वहां पे हम लोग को क्या देखना है कि कितने रिसोर्सेज आप यूज करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्स। तो इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोग का प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है और कितने रिसोर्सेज हम लोग के पास है। और अगर ज्यादा रिसोर्सेज अगर यूज करेंगे तो हम लोगों का बजट जो है वो कितना ओवरशूट हो सकता है, और उतना ओवरशूट बजट के लिए आपके जो कस्टमर है वो रेडी है क्या, तो ओवर स्पेंडिंग नहीं होगा। एक तो ये है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो गया, सिस्टम इज यूजुअली अनफिनिश्ड। तो प्राइस टू विन मतलब कट थ्रोट कंपटीशन है, तो आपका कस्टमर जो है आप थोड़ा डिस्काउंट दो सो दैट वो दूसरे को छोड़ के आपके पास आए। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट व्हाटएवर द कस्टमर हैज टू स्पेंड ऑन इट, ये आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, यू गेट द कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट तो ये होगा प्राइस टू विन कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। जैसे कोई अगर एक प्रोजेक्ट अगर 10 लाख में बना के दे रहा है एंड मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई आई विल प्रोवाइड और डेवलप द सेम प्रोजेक्ट फॉर 7 lakhs, तो 3 lakhs का अगर उसका प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्राइस टू विन हो गया। प्लस और ड्यूरेशन जो होगा वो भी उतने टाइम में मैं बना के दूंगा, क्वालिटी भी वो सेम अचीव करने का ट्राई करूंगा। डिसएडवांटेज क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर मीट्स गेट्स द सिस्टम he or she wants is small. Cost do not accurately reflect the work required. ये बहुत जरूरी है, मतलब कितना काम करना पड़ेगा, कितना एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वो हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करके बता नहीं सकते। वो तो जब डेवलप करेंगे तभी पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट पड़ रहा है, कितने अलग अलग एरर्स आ रहे हैं। टॉप डाउन एंड बॉटम अप एस्टिमेशन। टॉप डाउन में क्या बोला, स्टार्ट एट द सिस्टम लेवल एंड असेस द ओवरऑल सिस्टम फंक्शनलिटी। मतलब
ये जो भी हम लोगों को अलग से एक्स्ट्रा कुछ टूल्स या टेक्निक्स की जरूरत है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल फॉलो दिस अप्रोच, जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि एट द सिस्टम लेवल एंड असेस द ओवरऑल सिस्टम फंक्शनलिटी एंड हाउ दिस इज डिलीवर्ड। बराबर है। तो ये हम लोग देखेंगे। बॉटम अप में क्या बोला है, स्टार्ट एट द कंपोनेंट लेवल। कंपोनेंट मतलब छोटे छोटे लेवल पे। टॉप डाउन में सिस्टम लेवल या सॉफ्टवेयर लेवल पे चालू कर रहे हैं, याद रखो हम लोग। तो ऊपर के साइड से हम लोग एस्टिमेशंस डिफाइन करेंगे कि ओके टॉप मेरा ये मॉड्यूल है, उसके अंदर ये आएगा, उसके अंदर ये सब पार्ट आएंगे, तो टोटल एस्टिमेट्स क्या रहेंगे। बॉटम अप मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से हम लोग देखेंगे कि ओके मुझे अगर सपोज जूनियर कॉलेज बनाना है, सॉरी कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो फॉर कॉलेज सॉफ्टवेयर ये आपका कॉलेज सॉफ्टवेयर हो गया, एक मेन मॉड्यूल हो गया। अंडर दिस वी हैव स्टूडेंट मॉड्यूल, अंडर दिस वी हैव डिग्री कॉलेज एंड जूनियर कॉलेज, देन अगेन इन जूनियर कॉलेज वी हैव 3 सेक्शंस, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। तो ये सारे आपके एस्टिमेशंस हो गए, ठीक है। सो ये सारे एस्टिमेशंस के बेस के ऊपर वी सपोज टू फाइंड इट आउट कि आपके एफर्ट्स कितने जाएंगे। सो बॉटम मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे हम लोग देखेंगे कि आपके कितने एस्टिमेशंस हो सकते हैं और उस पर कितना टाइम लग सकता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो टॉप डाउन एस्टिमेशन, अनेबल, यूजेबल विदाउट नॉलेज। आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे प्रोजेक्ट का काम करने पे, तो आपने क्या देखा, जो भी आपको रिक्वायरमेंट मिले उसके बेस के ऊपर आपने एस्टिमेट्स दे दिए, ठीक है। लेकिन बॉटम अप में क्या है, ऐसे प्रोजेक्ट्स आपने ऑलरेडी बताया, तो इन डिटेल ग्राउंड लेवल का पूरा आपको डिटेल में नॉलेज है। तो यहाँ पे आप जो है वो डिटेल में आप थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या प्रॉपर एक कॉस्टिंग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एक्यूरेट मेथड ऑफ द सिस्टम हैज बीन डिसाइड इन डिटेल, may underestimate cost of the system level activities such as integration and documentation. So again bottom up में हम लोगों को डिटेल में नॉलेज तो है, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, the efforts which are required for integrating one module with another module, वो हम लोग प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाए या चेक नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन टाइम आपका एक्स्ट्रा लग गया, वो कॉस्टिंग आपका बढ़ गया, इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, वो कॉस्टिंग आपका बढ़ गया, है ना। तो ये सारे आपके कॉस्टिंग जो है वो आपके बढ़ गए, जो आप प्रॉपरली समझ नहीं पाए। तो दैट विल अगेन क्रिएट अ प्रॉब्लम कि अंडर एस्टिमेट हो गया, मतलब आपके पॉकेट से कुछ पैसे जाएंगे। आफ्टर सबमिटिंग द फाइनल रिपोर्ट या आफ्टर प्रोवाइडिंग वन फाइनल जजमेंट, वी कैन नॉट से कि ओके हम लोगों के पास स्टार्टिंग में हम लोगों ने इतने कॉस्ट बोला था, अभी हम लोग का ज्यादा लग गया है, तो यू प्रोवाइड अस और चेंज द टोटल बजट। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, प्रोफेशनली दिस इज नॉट अलाउड। एस्टिमेशन मेथड्स क्या बोला, ईच मेथड हैज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। एस्टिमेशन शुड बी बेस्ड ऑन सेवरल मेथड्स, हर एक का अपना वे रहेगा। जैसे अगर सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मेरा अपना खुद का एक वे हो सकता है, आप अगर बना रहे हैं, आपने प्रीवियसली ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम किया है, तो आपका कोई अलग वे हो सकता है, बराबर है। देन उसके आगे नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या बोला, if this do not return approximately the same result, there is insufficient information available। तो कभी कभी क्या होगा कि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन या सारे जो डिटेल्स है वो एक साथ अवेलेबल नहीं है, सो उसकी वजह से क्या हुआ कि आप प्रोजेक्ट को प्रॉपर जज नहीं कर पाए। अगेन दैट इज द प्रॉब्लम। सो सम एक्शन शुड बी टेकन टू फाइंड आउट मोर इन ऑर्डर टू मेक मोर एक्यूरेट एस्टिमेट्स। प्राइसिंग टू विन इज समथिंग द ओनली एप्लीकेबल मेथड। एक्सपीरियंस बेस्ड एस्टिमेट्स सबसे बेस्ट है, ये ज्यादा तकलीफ नहीं, आपको एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि कहाँ पे आपका क्या तकलीफ हुआ था, कहाँ पे आपका क्या प्रॉब्लम हुआ था। So based on this, if we provide a information, if we put the efforts, so यहाँ पे क्या बोला, estimating is primarily experience based. However, new methods and technologies may make estimating based on experience inaccurate. क्यों? Because last time आपने ये project बनाया था, वो time पे the technology tools which we have used was older, और अभी हम लोग जो use कर रहे हैं वो अलग है, तो उससे क्या हो गया, that again creates a problem, बराबर है। क्योंकि ओल्डर टेक्नोलॉजी से आपके जो एफर्ट्स लग रहे थे, आपको जो वे में बनाने आ रहा था, और अभी का जो है वो अलग हो गया। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रेदर देन फंक्शन ओरिएंटेड। सो एस्टिमेशंस कभी कभी ऐसा हो जाता है, बराबर है। देन क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स रेदर देन मेन फ्रेम सिस्टम्स। सो अब क्लाइंट सर्वर से भी हम लोग क्लाउड पे जा रहे हैं, तो अगेन क्लाउड का अलग से आपका डेवलपमेंट होगा, अलग डेवलपमेंट होगा, वो हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पाए। अगेन एक्सपीरियंस बेस्ड तो है, लेकिन लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बनाया था वो क्लाइंट सर्वर पे बनाया था।
या मेन फ्रेम पे बनाया था और अभी हम लोग क्लाउड पे डाल रहे हैं उसको, बराबर है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ऐड कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स लास्ट में मिसिंग थे। तो एक्सपीरियंस बेस पे भी आपके एस्टिमेशन जो है वो इनएक्यूरेट हो सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपके कितने एफर्ट्स लगेंगे उसका आपके पास क्लियर आइडिया नहीं है। सो केस टूल, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब आएंगे। प्राइस टू विन बहुत सिंपल है, दिस अप्रोच मे बी सीम अनएथिकल एंड अनबिजनेस लाइक। जैसे आप देखो कि अभी जियो का एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, तो जियो ने स्टार्टिंग में सबको फ्री में सिम बांटे, फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड किया। सो वो जो है वो अनएथिकल हो गया। अनएथिकल क्यों हो गया? बिकॉज इसको इसको हम लोग एक अलग पैटर्न में कंसिडर करते हैं, बराबर है। सो यहाँ पे क्या होगा कि आप इतना चीजों को सस्ता कर देते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो लॉस में चले जाए, और बाद में फिर आप खुद का मोनोपोली चला के पूरा मार्केट कैप्चर करेंगे। इसको प्रीडेटर मार्केटिंग बोलते हैं। मतलब जहां पे हम लोगों ने क्या किया, सबको मार डाला, इन शॉर्ट इतना सस्ते चीजों में प्रोजेक्ट्स दिए। तो दिस शुड नॉट बी द केस। सो यहाँ पे ये अनएथिकल हो जाता है। प्राइस टू विन में आप अगर बहुत कम प्राइस में अगर कोई एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आपका लॉस हो रहा है, वो तो अलग है, लेकिन आपके साथ में बाकी के जो आपके बिजनेस पार्टनर्स है उनका भी लॉस हो रहा है, क्योंकि मार्केट में आप प्राइसेस तोड़ रहे हैं। सो ये वही है। However, when detailed information is lacking, it may be only appropriate strategy. The project cost is agreed on the basis of an outline proposal, and development is constrained by the cost. So algorithmic model जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, cost is estimated as a mathematical function of the product, project and process attribute whose value are estimated by the project manager. For example, efforts equal to A into size raised to B into M. So A is the organization dependent constant है, मतलब आपका organization के क्या standard rules procedures है जो आपको development में follow करना है। Then B reflects the disproportionate efforts for large project, कि आपने सोचा था लेकिन बहुत बड़े डिफेक्ट्स आ गए, आपके डेवलपर्स जो थे वो अभी कंपनी छोड़ के चले गए, तो आप नए कोई डेवलपर्स को ला रहे हैं, है ना। एंड M इज द मल्टीप्लायर रिफ्लेक्टिंग प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड पीपल एट्रीब्यूट। मतलब एक सेम काम आपको 10 बार करना पड़ रहा है क्योंकि किसी एक ने प्रॉपर नहीं किया, वापस उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, या फिर आपके दो बहुत बड़े बड़े मॉड्यूल्स है और दोनों में आप कोई एक सेम काम कर रहे हैं। सो क्या हो गया, आपके एफर्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो गए। मोस्ट कॉमनली यूज प्रोडक्ट एट्रीब्यूट फॉर अ कॉस्ट एस्टिमेशन इज कोड साइज। मतलब ये आपका सबसे कॉमन है। सो अगर सिंपल से प्रोजेक्ट है, आप जो कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट, कॉलेज फाइनल ईयर में कॉलेज प्रोजेक्ट बनाएंगे, so for that as well, if you want to calculate the estimate of your project, then will be considered the total estimated code lines or code size. So most model are basically similar but different values, बराबर है। estimate accuracy, अब accuracy कभी नहीं होता, आप कितना भी कैलकुलेट कर लो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। कि मैं आई कैन नॉट से कि मेरे टोटल जो कॉस्टिंग होगा वो 10 लाख का, अगर मेरा टोटल बजट है तो 7 लाख ही मेरा एग्जैक्ट कॉस्टिंग होगा और 3 लाख जो है वो मुझे बहुत इजीली मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी नोन एक्यूरेटली व्हेन इट इज फिनिश्ड, बराबर है, उसके पहले पता नहीं चल सकता। तो प्रोजेक्ट जब तक खत्म नहीं होता तब तक आप एग्जैक्ट एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि आपका प्रोजेक्ट का साइज कितना रहेगा, कितने लाइन ऑफ कोड रहेंगे। सो लाइन ऑफ कोड जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो अप्रॉक्स बेसिस पे करते हैं, वो ऊपर नीचे तो होना ही है। सो सेवरल फैक्टर इन्फ्लुएंस द फाइनल साइज, लाइक यूज ऑफ कोड्स एंड कंपोनेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम, ये सारा आएगा। नाउ एस्टिमेट अनसर्टेनिटी, अगेन ये एक डायग्राम जो है वो मैं बताता हूँ। भाई यश, कैम बंद करो, क्या कर रहे हो? सॉरी सर, गलती से। हाँ, यस सर, सॉरी। ओके। सो नेक्स्ट जो डायग्राम है, अगेन दैट डायग्राम इज मिसिंग, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको डायग्राम ओपन करके बताता हूँ। सो डायग्राम जो है हम लोगों का, दैट इज फॉर एस्टिमेट अनसर्टेनिटी, एस्टिमेट अनसर्टेनिटी। ओके, सो एस्टिमेट अनसर्टेनिटी जो होगा उसका आपका डायग्राम क्या आएगा वो देखते हैं हम लोग। एंड उसका मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या रहेगा। ओके, सो यहाँ पे इफ यू नोटिस हम लोग के पास जो डायग्राम आएगा, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। आई विल जस्ट पेस्ट दैट डायग्राम इन चैट बॉक्स। ओके, आप चैट में देख लो एक बार, और ये सारे डायग्राम्स आपको नोट करके रखने हैं प्लीज। जो नोट्स में प्रॉपर दिए हुए नहीं है, विल बी नोटिंग डाउन दैट। ओके, जस्ट 1 मिनट।
So as you can see, one diagram which was missing, I mean यहाँ पे जो हटा दिया है, here we have this diagram, cost estimate uncertainty. So क्या बोला है यहाँ पे, अब देखो एक्चुअल जो आपका पर्सनल मंथ्स के बेसिस पे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे वो एक्यूरेट नहीं होगा. जैसे जैसे आप कोड पे आएंगे, डिलीवर होगा फाइनल सॉफ्टवेयर, बेस्ड ऑन दिस वी कैन आइडेंटिफाई कि ओके टोटल आपके एफर्ट्स कितने हैं और टोटल आपका फाइनल कॉस्टिंग कितना आ रहा है. सो एस्टिमेट अनसर्टेनिटी जो बताया यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एज पर द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस, बराबर है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस इन द एक्चुअल एस्टिमेट डिक्रीजेस. सो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनते जाएगा आपको पता चलेगा कि एक्चुअल एस्टिमेट्स क्या है. तो जब तक आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी पे हो, आपका एक्चुअल एस्टिमेट जो है, एस्टिमेटेड पर्संस पर मंथ और जो एक्चुअल एस्टिमेट्स आपके लगेंगे वो बहुत अलग अलग है. रिक्वायरमेंट पे आए थोड़ा मैच होगा, डिजाइनिंग पे आए तो थोड़ा मैच होगा, आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा. कोडिंग पे और बेटर आइडिया मिलेगा. एंड आफ्टर कोडिंग जब टेस्ट एंड डिलीवरी होगा तब आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रहेगा अबाउट दिस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. या so that's one diagram which was missing in that notes. Now if we go back to our main topic, ये मैंने आपको diagram बता दिया. Next we have is a COCOMO model. So as you can see we have a COCOMO model में भी same है, and empirical model based on project experience, well documented independent model which is not tied to a specific software vendor. अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोकोमो मॉडल इज द ओल्डेस्ट वन, जहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस के बेस के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं. और कोई एक सॉफ्टवेयर में अगर कोई एक कंपोनेंट अगर हम लोग रीयूज कर पाएंगे, सो उसके एफर्ट्स हटा दो और बाकी के जो आपके एफर्ट्स है वो ऐड करके बताओ कि कितना आपको टाइम लगेगा फॉर द डेवलपमेंट. सो यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव दिस सेम अप्रोच. एक सेकेंड ना, वी हैव दिस सेम अप्रोच फॉर दिस. ओके गाइस, यहाँ पे ये थोड़ा क्लियर नहीं है. कोकोमो मॉडल वी कैन जस्ट सिंपली रिमेंबर कोकोमो मॉडल. ये कहीं पे मुझे क्लियर पिक्चर मिला ही नहीं है, सो वी कैन जस्ट सिंपली स्किप दिस पार्ट. ये वाला स्लाइड छोड़ दो आप. वी हैव कोकोमो लेवल 2, ठीक है. सो ये वाला स्लाइड छोड़ दो, विल बी गोइंग विद दिस. कोकोमो 2 इज अ 3 लेवल मॉडल, जहाँ पे क्या होगा, जो एस्टिमेट्स जो होंगे वो कैसे होंगे. First is early prototyping level, estimate based on project point and a simple formula is used for effort estimation. That is early prototyping. Early prototyping मतलब starting में हम लोग जो एक डमी मॉडल बना लेंगे जिसके बेस के ऊपर हम लोग एस्टिमेट्स निकालेंगे कि ओके हम लोग का ये प्रोटोटाइप है, इतने हम लोग के स्क्रीन्स या इतने हम लोग के फॉर्म्स या पेजेस, वेब पेजेस बन रहे हैं, यहाँ पे ये कुछ डेटाबेस इतना बन रहा है, तो उसके हिसाब से ये हम लोग के एस्टिमेट्स हो सकते हैं.
देन उसके बेस के ऊपर जो डिजाइन हम लोग बनाएंगे उसके एस्टिमेट्स आएंगे, एंड पोस्ट आर्किटेक्चर लेवल मतलब आर्किटेक्चर डिजाइन बनते हैं आपके, है ना, जिसके बेस के ऊपर वी कैन जस्ट आइडेंटिफाई कितना लाइन ऑफ सोर्स कोड लगेगा, एंड बेस्ड ऑन लाइन ऑफ सोर्स कोड वी कैन आइडेंटिफाई कि आपका कितने एस्टिमेट्स या एफर्ट्स लगेंगे। तो अर्ली प्रोटोटाइप में क्या बोला हम लोग को, सपोर्ट्स प्रोटोटाइपिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स वेयर देयर इज एन एक्सटेंसिव रीयूज ऑफ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, उनका कोड, उनका डिजाइंस, बराबर है। सो बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स, हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स ऑफ द डेवलपर प्रोडक्टिविटी इन ऑब्जेक्ट पॉइंट्स पर मंथ। मतलब ऑब्जेक्ट पॉइंट्स मतलब क्या बोला हम लोगों ने, जैसे अगर मेरे पास साइन अप पेज है तो एक साइन अप फॉर्म बनेगा, साइन अप फॉर्म है तो एक उसके लिए एक साइन अप वाला क्लास बन सकता है, देन लॉगिन है तो लॉगिन वाला एक अलग से बनेगा, देन यूजर प्रोफाइल है तो उसका बनेगा। तो उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने कितने हम लोगों के स्क्रीन्स है अलग अलग अपना एक प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने उतने स्क्रीन, जितने भी टोटल स्क्रीन्स रहेंगे, बेस्ड ऑन दैट विल बी कैलकुलेटिंग दी टोटल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स, है ना। बहुत सिंपल, वी कैन से फॉर वन स्क्रीन वी हैव वन ऑब्जेक्ट पॉइंट। तो कितने ऑब्जेक्ट पॉइंट पर मंथ हम लोग डेवलप करेंगे, और उसके लिए वी कैन टेक दी हेल्प ऑफ केस टूल्स। सो फॉर्मूला क्या दिया है हम लोग के पास, जो आपका टोटल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि हम लोग के पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट्स आपके कितने हैं, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट्स मल्टीप्लाई विद 1 माइनस कितना परसेंट आप प्रोजेक्ट रीयूज करेंगे, तो उसका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, और उसके बेस पे डिवाइड में क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी आएगा। सो ये आपका इक्वेशन है, आपको प्रैक्टिकली मतलब हम लोग यहाँ पे कोई सम सॉल्व नहीं कर रहे, बट हाँ वी सपोज टू रिमेम्बर दिस फॉर एमसीक्यूज, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ये याद रखना है। सो ऑब्जेक्ट पॉइंट प्रोडक्टिविटी में आपको क्या बोला है, एज यू कैन सी डेवलपर्स एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटी। तो अगर डेवलपर का एक्सपीरियंस अगर कम है तो प्रोडक्टिविटी कम रहेगा, एक्सपीरियंस उसका जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसा प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाएगा। तो ये समझ लो कि हम लोग यहाँ पे कॉलेज लेवल पे वेरी 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 फ्रेशर, तो आपका प्रोडक्टिविटी पर मंथ बहुत कम है। फिर आपको 6 मंथ्स हो गए अपना वर्क करते हुए, ट्रेनिंग हो गया आपका प्रॉपर, तो प्रोडक्टिविटी 7 पे आ गया। देन 1 ईयर हो गया, नाउ यू आर वर्किंग इंडिविजुअली, तो आपका प्रोडक्टिविटी 13 हो गया। अब 2 साल हो गए, आपको बहुत एक्सपीरियंस आ गया है, बहुत ट्रायल एंड एरर कर लिया, नाउ यू आर एन एक्सपर्ट इन सम XYZ फील्ड, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, और 5-6 साल के बाद में तो प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगा। सो दैट्स द प्रोडक्टिविटी। अर्ली डिजाइन लेवल्स, सो अर्ली डिजाइन लेवल्स में यहाँ पे देखो ये बड़े बड़े इक्वेशंस दिए हैं, ये आपको काम के नहीं है, बट जस्ट रिमेंबर एस्टिमेट कैन बी मेड आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स हैज बीन अग्रीड। मतलब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मिल गए, और अभी हम लोग जो डिजाइन बनाएंगे बेस्ड ऑन दैट डिजाइन विल बी डिफाइनिंग कि ओके टोटल आपके लाइन ऑफ कोड कितने रहेंगे। तो इसके लिए अलग अलग डिजाइन जो है वो हम लोग यूज करेंगे। एक तो प्रीवियस प्रोजेक्ट में से कोई डिजाइन रीयूज करेंगे, केस डायग्राम्स बनाएंगे, डीएफडी डायग्राम्स बनाएंगे। तो ये डायग्राम के बेस के ऊपर पता चलेगा कि ओके डेटाबेस का साइज कितना बड़ा हो सकता है, आपका जो मेन कोडिंग होगा वो कितने लगेंगे, वो सब आएगा। मल्टीप्लायर, अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया है, फर्स्ट वी हैव पर्सनल कैपेबिलिटी, ठीक है, m इक्वल टू, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट आपका जो प्रोजेक्ट का जो टोटल कैपेबिलिटी है, प्रोजेक्ट मैच्योरिटी पे आपको क्या बोला है, वी हैव a मल्टीप्लाई विद साइज रेज टू b इनटू m, बराबर है, डिवाइड बाय प्लस आपका प्रोडक्ट जो होगा मेन जो प्रोडक्टिविटी जो होगा वो दिया है यहाँ पे सिंपल इक्वेशन से। सो वहां पे m का मतलब क्या है, m जो यहाँ पे दिया है कैपिटल, वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पर्सन्स कैपेबिलिटी, बराबर है, पर्सनल कैपेबिलिटी। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया है RCPX, इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। देन उसके बाद में आर यूज है, मतलब आप रीयूज करेंगे, रीयूज रिक्वायर्ड, कितना चीजें आप रीयूज कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड है, वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। देन पीडीआईएफ का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म डिफिकल्टी, मतलब विंडोज पे तो वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर चल रहा है, लेकिन लिनक्स पे प्रॉब्लम दे रहा है, तो वहां पे आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे, वो आ गया। उसके बाद में प्रेक्स आ गया, प्रेक्स का मतलब क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस आपका कितना है ऐसे सॉफ्टवेयर पे, ऐसे चीजों पे पहले काम करने के लिए, वो आएगा। देन एफसीआईएल का मतलब क्या होगा, एज यू कैन सी द टीम सपोर्ट फैसिलिटी,
मतलब आपके पास जो टीम है उसमें कितने अलग अलग डेवलपर्स है और उनके अपने खुद के एक्सपीरियंस कितने हैं, है ना। और लास्ट में आएगा SCED। तो SCED का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड शेड्यूल। मतलब अभी ये सारे जो चीजें आपने कैलकुलेट किए उसके लिए टोटल आपके एस्टिमेट्स कितने लगेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में MCQ के लिए याद रखना है बहुत प्रॉपरली आपको ये, ठीक है। ये वाला M का मतलब क्या है और PM का मतलब जो है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो एटलीस्ट आपको ये M वाला जो है वो प्रॉपर याद रखना है। सो मल्टीप्लायर क्या बोल रहा है, मल्टीप्लायर रिफ्लेक्ट्स द कैपेबिलिटी ऑफ द डेवलपर। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब हार्डवेयर कितना लगेगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, वो सब आएगा, और कौन से डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये सब कैलकुलेट करेंगे। सो आपको फाइनल एक रिजल्ट मिलेगा। पोस्ट आर्किटेक्चरल लेवल में क्या बोला है, यूज सेम फॉर्मूला एज अर्ली डिजाइन, एस्टिमेट्स ऑफ द साइज इज एडजस्टेड टू टेक इनटू अकाउंट रिक्वायरमेंट में चेंजेस कितने हो रहे हैं, कहाँ पे आपको वापस रिवर्क करना पड़ रहा है, क्यों, बिकॉज रिक्वायरमेंट चेंज हो गया या कस्टमर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बना है कुछ चीजें। एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल रीयूज, then reuse is non-linear and has associated with cost, so that so this is not a simple reduction in line of code। so उसके हिसाब से हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, estimated line of code बराबर है इक्वल टू एक्चुअल लाइन ऑफ कोड जो आपने फाइंड आउट किया है, और उसके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रीयूजेबल कोड विच मस्ट बी मॉडिफाइड। देन DM इज द परसेंटेज ऑफ डिजाइन मॉडिफाइड, कि कितने बार बेस्ड ऑन दिस हम लोग को डिजाइन मॉडिफाई करना पड़ा। CM इज द परसेंटेज ऑफ कोड दैट इज मॉडिफाइड, कोड मॉडिफाइड। IM इज द परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल इंटीग्रेशन एफर्ट्स, मतलब अलग अलग कोडिंग जो आपने किया है वो सब साथ में जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना मेहनत लगा, कितने बग्स या डिफेक्ट आया उसमें, उसके एफर्ट्स, बराबर है। ये सब आपको कैलकुलेट करना है। और SU जो है यहाँ पे, SU इज द फैक्टर यूज्ड ऑन द सॉफ्टवेयर फॉर सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडिंग, मतलब अभी ये जो भी कुछ आपने बनाया है उसके बाद में आपका सॉफ्टवेयर कितना सिंपल बना है अपने कस्टमर्स या क्लाइंट को समझने के लिए। एंड यहाँ पे A का मतलब है असेसमेंट के आपके एफर्ट्स जो लगेंगे वो। फैक्टर रिफ्लेक्ट्स द इनिशियल असेसमेंट कॉस्ट ऑफ डिसाइडिंग इफ सॉफ्टवेयर में बी रीयूज्ड और नॉट। अगर रीयूज नहीं हो सकता है, नेक्स्ट टाइम आप पूरा नया ही कोई दूसरे टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर बना रहे, तो ये बार आपने जो भी मेहनत किया है उसका पूरा आपका कॉस्टिंग जो है वो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में से, बजट में से मिलना चाहिए, अदरवाइज आपका मेहनत वेस्ट हो गया। Exponent team, this depends on 5 scale factors, like there is sum divided by 100 is added to 0.1। जैसे यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ एक्सपोनेंट स्केल फैक्टर्स कौन से रहेंगे, जैसे एग्जांपल दिया है प्रेसिडेंट जो है न्यू प्रोजेक्ट के लिए कितना है, डेवलपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, और स्केल फैक्टर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो अगर प्रेसिडेंटनेस की बात करेंगे, रिफ्लेक्ट द प्रीवियस एक्सपीरियंस, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको कॉलेज सॉफ्टवेयर बना रहा है तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है, और वैसे टाइप के सॉफ्टवेयर पे अगर आपने काम किया है क्या। अब यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट लेवल अगर वेरी लो है, मतलब प्रीवियसली ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, एंड एक्स्ट्रा हाई मींस ऐसे ही प्रोजेक्ट पे आपने काम किया और वही सेम प्रोजेक्ट आपको वापस मिल रहा है। डेवलपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी क्या बताएगा, रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, बराबर है। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही SDLC फॉलो करना है, ऐसे ही डिजाइनिंग करना है और ऐसे ही कोड करना है। आप जो वे में कंफर्टेबल रहेंगे आप वो वे में कोड करो, सिर्फ क्वालिटी कोडिंग आना चाहिए। सो वो बताता है। तो अगर डेवलपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है तो उसको वेरी लो से हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे। एक्स्ट्रा हाई मतलब हम लोगों ने फ्रीडम दिया हुआ है हम लोगों के एक्सपीरियंस डेवलपर को कि आप अपने बेस्ट वे में डेवलप करके दो। आर्किटेक्चर और रिस्क रिजोल्यूशन रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, लाइक वेरी लो मींस वेरी लिटिल एनालिसिस, आपने रिस्क एनालिसिस किया ही नहीं है, और एक्स्ट्रा हाई मींस अ कंप्लीट और थॉरो रिस्क एनालिसिस हो गया, तो आपको इन एंड आउट टोटल पता है कि कहाँ पे प्रोजेक्ट में क्या रॉन्ग जाएगा तो कितना आपका प्रॉब्लम हो सकता है। टीम कोहेजन रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल द डेवलपमेंट टीम नो ईच अदर एंड वर्क टुगेदर, मतलब एक एज ए टीम वर्क करने का उनके पास कैपेबिलिटी है या नहीं है। सो वेरी लो मींस वेरी डिफिकल्ट इंटरेक्शन, एक्स्ट्रा हाई मींस एन इंटीग्रेटेड एंड इफेक्टिव टीम विद नो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। Then next we have a process maturity, क्या बोला है, reflect the process maturity of the organization, the computation of this value depends on
कंटिन्यूअस हम लोगों का जो मैच्योरिटी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल बोलते हैं इसको। कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल मतलब कंटिन्यूअस वी कीप ऑन वर्किंग ऑन सम सॉफ्टवेयर, जहाँ पे छोटे छोटे चीजों को हम लोग और बेटर और रिफाइन करने की ट्राई करते हैं। जैसे आप देखो कि व्हाट्सएप है, तो आप कंटिन्यूअस वर्क करते जाओ और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि कुछ ना कुछ न्यू फंक्शंस वो ऐड कर रहे हैं, कुछ प्रीवियसली कुछ चीजें जो प्रॉपर नहीं थे उसको और बेटर बनाने का काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल बोलते हैं। सो वहां पे आपका कंटिन्यूअस मैच्योरिटी मॉडल मतलब कंटिन्यूअस सिस्टम को अगर बेटर बनाना है तो आपको मैच्योरिटी क्वेश्चनर्स मतलब कहाँ पे किसको क्या एफर्ट्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब आपको दिखना पड़ेगा ना, और उसके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे वर्क करने का ट्राई करेंगे मैच्योरिटी मॉडल पे। प्रोसेस मैच्योरिटी मॉडल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा है, जहाँ पे कोई एक कोड को हम लोग और बेटर, कोई एक सॉफ्टवेयर को और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे। अब जैसे व्हाट्सएप का एग्जाम्पल है कि स्टार्टिंग में भी उसमें हम लोग फोटो सेंड कर ही पा रहे थे, लेकिन वो एल्बम वे में नहीं जा रहा था, अब वो एल्बम वे में जा रहा है, सो दैट इज अ बेटर वन। So multiplier product attribute concerned with the required characteristics of the software product being developed. Then next we have a computer attribute. Computer attribute में क्या constraint मतलब क्या condition है जो हम लोगों ने apply किया हुआ है on the software by the hardware platform। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम 4 GB रैम रिक्वायर्ड ही है, 1 GB ग्राफिक कार्ड या 2 GB ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड है, मिनिमम 100 GB हार्ड डिस्क रिक्वायर्ड होगा, ये सब आपका कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स है। पर्सनल एट्रीब्यूट मल्टीप्लायर दैट टेक द एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को टैली टाइप सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है या ऐसा कोई हम लोगों ने बनाया, तो प्रीवियसली कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसने टैली पे इन एंड आउट वर्क किया हुआ है। सो ये हम लोग के पर्सनल एट्रीब्यूट हो गए, क्योंकि अगर उसने टैली पे ही वर्क नहीं किया है तो हम लोग का सॉफ्टवेयर तो उसके लिए बहुत नया हो गया। सो अगर किसी को टैली का अगर एक्सपीरियंस है तो फिर हम लोग के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे ही कैन वर्क। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट विद सम स्पेसिफिक फंक्शंस या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे, और ये जो है ये कंसर्न किसके बेस पे रहेगा, करंटली हम लोग के जो कॉम्पिटिटर्स है वो कौन से टाइप के एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप लिंक करो विद आवर कस्टमर, और प्लस कस्टमर प्रीवियसली अगर कोई ऐसा ही पुराना सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था तो उसके साथ मैच करके हम लोग प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। सो अगेन ये वाला स्लाइड छोड़ दो, यहाँ पे जो प्रॉपर थोड़ा पढ़ने नहीं आ रहा है, सॉरी थोड़ा पढ़ने आ रहा है, इतना अभी वो नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया है, REL रिक्वायर्ड सिस्टम रिलायबिलिटी, सिंपल है, पढ़ने आ रहा है, थोड़ा वो ब्लर हो गया। REL मतलब RELY मतलब रिक्वायर्ड सिस्टम रिलायबिलिटी, बराबर है। CPLX क्या बोला है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम मॉड्यूल्स। देन DOCU क्या बोला है, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। देन डेटा का मतलब क्या है, साइज ऑफ डेटाबेस विच इज रिक्वायर्ड। RUse क्या है, रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट। देन कंप्यूटर एट्रीब्यूट क्या बोला है, टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम कंस्ट्रेंट है। एग्जीक्यूशन टाइम कंस्ट्रेंट मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इफ द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ आवर सॉफ्टवेयर, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्स टाइम। सो इफ रिस्पॉन्स टाइम बिटवीन 1 to 2 सेकेंड्स, बराबर है, सॉरी 0 to नहीं, हाँ 0 to रखते हैं, चलो 0 to 2 सेकेंड्स, सेकेंड्स में बात कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड्स में आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है, इनपुट देने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट जो हो रहा है वो 0 to 2 सेकेंड्स मतलब एक्सीलेंट है। 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। 3 to 5 seconds means above average, बराबर है। देन 6 to 8 seconds का मतलब क्या होगा, 6 to 8 seconds मतलब आई कैन से कि ओके है, चल जाएगा, ओके। यहाँ पे आएगा 3 to 5 seconds means as expected, सॉरी as expected, ठीक है, as expected 3 to 5। 6 to 8 मतलब ओके है या क्वालिटी जो है वो पुअर है, लेकिन फिलहाल के लिए चलेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, बेटर बनाना पड़ेगा उसको। एंड ग्रेटर देन 9 सेकेंड्स अगर रिस्पॉन्स टाइम है मतलब विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपका जो रिस्पॉन्स टाइम या क्वालिटी है वो काफी पुअर है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये कंप्यूटेशन टाइम हो गया। वॉलिटिलिटी ऑफ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, मतलब पहले हम लोग अगर लिनक्स पे बना रहे थे, अभी हम लोग विंडोज पे बना रहे हैं, है ना। STOR मतलब मेमोरी स्टोर कंस्ट्रेंट्स, मतलब हम लोग कौन से टाइप के डेटा, फाइल्स, वीडियो स्टोर कर सकते हैं, कौन से टाइप के सपोर्टेबल नहीं रहेंगे, वो आएगा। प्रोग्रामेबल कैपेबिलिटी आएगा, PCAF है। देन पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, ACAP है। कैपेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एनालिसिस, PCON है। पर्सनल कंस्ट्रेंट्स या कंटिन्यूटी क्या है। देन सेम वे ये है। तो आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद रखने, एग्जाम में ऐसे फुल फॉर्म्स आएंगे, यू सपोज टू आंसर इट इन MCQs। ठीक है। इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स क्या क्या है। तो रिलायबिलिटी का मतलब वेरी हाई, मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, देन मेमोरी कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है, हाई मल्टीप्लायर, टूल यूज क्या है, लो मल्टीप्लायर, शेड्यूल क्या है, देन एडजस्टेड कोकोमो एस्टिमेट्स कितने रहेंगे। सो ये बेसिक टेबल है, आपको पढ़ना है फॉर MCQs। कोई डाउट्स रहेंगे तो पूछ लो मुझे। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्गोरिदम कॉस्ट मॉडल प्रोवाइड्स अ बेसिक फॉर अ प्रोजेक्ट प्लानिंग एज दे अलाउ अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज एज वेल। क्योंकि एक सेम प्रोजेक्ट हम लोग मल्टीपल वेज में भी बता सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, इफ यू हैव एम्बेडेड स्पेसक्राफ्ट सिस्टम, तो ये स्पेसक्राफ्ट सिस्टम है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, लोगों का जान डिपेंडेंट है, तो इस पे रिलायबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस होगा। देन नंबर ऑफ चिप्स कितने हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपके एफर्ट्स रहेंगे। मल्टीप्लायर ऑन रिलायबिलिटी, कंप्यूटर कंस्ट्रेंट, कॉस्ट कंपोनेंट है। कॉस्ट कंपोनेंट मतलब टारगेट हार्डवेयर कितने हैं, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स कितने हैं, एफर्ट्स रिक्वायर्ड क्या है, वो सब आएगा। ओके। सो ये आपके बेसिक पॉइंट्स है। और अगेन इसमें डायग्राम्स थोड़े बहुत मिसिंग है, जस्ट 1 मिनट। ओके। सो ये वाला जो पॉइंट है, जस्ट 1 मिनट। ये वाला जो पॉइंट अभी हम लोगों ने देखा है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट। प्रोजेक्ट प्लानिंग वाला जो टॉपिक है, थोड़ा सा ही हम लोगों का यूनिट 4 बचा है। विल बी फिनिशिंग दिस यूनिट बाय नेक्स्ट लेक्चर। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट, एनीवन, एनी डाउट? No, sir. ओके।